Hello students, in this video we will continue further with current electricity. Now what we are going to do in this video is we are going to cover up some basics which will help you to solve circuits. Okay, now when I say solving a circuit को solve करना मतलब अलग अलग component से कितना current pass हो रहा है वो determine करना, या फिर what is the overall resistance of the circuit, ये सारी चीजें determine करना, इसी को कहा जाता है solving of a circuit. Okay. Now हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा हुआ है कि रेजिस्टेंसेस कैन आइदर बी कनेक्टेड इन सीरीज और दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल. आप सीरीज कनेक्शन कब कहते हो? आप सीरीज कनेक्शन तब कहते हो जब इन सब सारे रेजिस्टर्स में से सेम करंट जब पास हो, उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन. ओके ओके सो इन दिस केस इफ यू लुक एट करंट आई, दिस करंट हैज नो अदर पाथ टू गो. ये रेजिस्टर से पास होगा, उसके बाद यहां से पास होगा, उसके बाद यहां से पास होगा. सो दैट इज वाई सेम करंट यहां से पास हो रहा है, तो वी से दैट R1. सो इफ दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3, वी विल से दैट ऑल थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, एंड जब सीरीज कनेक्शन होता है तो आपको पता ही है रिजल्टेंट जो होता है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. सो सीरीज कनेक्शन डिटरमाइन करने के लिए आपको बस एक ही चीज देखनी है, आपको वही देखना है कि वेदर इन सारे रेजिस्टर से सेम करंट पास हो रहा है या इन रेजिस्टर से डिफरेंट करंट पास हो रहा है. ठीक है, ओके. अब उसके बाद आता है रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहेंगे. दिस इज योर सीरीज कनेक्शन. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन, बेसिकली आपको ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम across the resistors. Okay, now this is not just enough potential differences same across the resistors. Acha, what is also important for you to understand is कि they are connected across same 2 points. Connected across same 2 points. Okay, so let me give you an example. Let's say you have this. Okay, अब you have इस तरह से रेजिस्टर्स का कनेक्शन है. Okay, now if I call this point as point A, this will be a different point, so this will be your point B. Okay, now this will also be a different point क्योंकि B और C के बीच में कंपोनेंट आ गया ना. You have a resistor over here. कोई भी जब एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ जाता है तो हम नंबरिंग या नेमिंग चेंज कर देता है. Now if you look at this resistor, this is point B, so this will also be your point B, and if this is point C, this will also be your point C. So यहाँ पे R1, R2 and R3. So if you look at R2, it is connected between B and C. If you look at R3, it is also connected between B and C. So I'll say R2 and R3 are connected in parallel. इनका जो combination होता है that is a parallel combination. ठीक है, I hope you have understood this. Okay. Okay. So just saying that potential difference is same across the resistors, that is not enough. They should also be connected across the same 2 points. When they are connected across the same 2 points, we say that the connection is a parallel connection. Okay. Now आपको पता ही है कि जब resistors parallelly connected होता है, इनका जो resultant होता है, it is given by 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on and so forth. This is how you find out the resultant resistance. Correct? But अब मैं आपको 2 results बताऊंगा, ये 2 results आपको याद रखना है. If there are only 2 resistors which are connected in parallel, let's say ये एक resistor है and ये और एक resistor है. Let's say this is R1, this is R2. तो इन दोनों का resultant find out करने के लिए आपको ये इतना सब करने की जरूरत नहीं है. You can just remember that in this case this will be equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. ये आप कैसे निकाल सकते हो? So बस 2 ही रेजिस्टर्स है तो 1 अपॉन RP वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको RP ये आ जाएगा. So please remember this, when there are only 2 resistors,
your resultant of the two is R1 R2 divided by R1 plus R2. Acha, now in second case you have to remember this. If there are n resistors which are connected in parallel, okay, let's say ये ऐसे n resistors है, सारे पैरेलल में कनेक्टेड है एंड हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है आर हर एक की वैल्यू अगर जो सेम है तो इन दिस केस योर आरपी इज सिंपली इक्वल टू आर बाय एन. दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड यूजिंग दिस. बहुत ही सिंपल है. ओके, प्रूफ. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर. सो व्हेन यू हैव n सेम रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू आर बाय एन. And if you have two resistors which are connected in parallel, even if they are different, Rp is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. ये फॉर्मूला यूज करते वक्त R1 and R2 can be same, they can be different, but जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो सारे रेजिस्टर्स हैव टू बी सेम, तभी जाके आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है ना. नॉर्मली जो अब आपको सर्किट्स आएंगे, जो सॉल्व करने वाले सर्किट्स आएंगे, वहां पे ये दोनों कॉम्बिनेशंस होंगे. Some of the resistors will be connected in series, some of the resistors will be connected in parallel. तो ऐसे combinations को solve कैसे किया जाता है? तो let's take an example. Let's say you have this kind of a circuit. ये ऐसा आपका सर्किट है. ओके, नाउ यहां पे हम लोग ये मानते हैं कि द वैल्यू ऑफ एवरी रेजिस्टर इज आर, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ये पॉइंट ए एंड बी. सो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है. अब ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो ऐसे केस में क्या करना होता है आपको? यू हैव टू स्टार्ट दिस वे. किसी तो एक एंड से आप अंदर करंट भेजना स्टार्ट करो. So let's say if you start sending current from this end, okay, so okay, current यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि जंक्शन है. So some current will go from here, some current will go from here. ये करंट ऐसे आगे जाएगा, यहाँ पे वापस जंक्शन आएगा. So वापस क्या होगा? Some current will go from here, some current will go from here. Now if you see this current has no other path, ये सेम करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा एंड यहां से ऐसे जाएगा. ओके, नाउ अच्छा, मोरेवर लेट मी डू वन थिंग. लेट मी राइट डाउन लेट मी नंबर द पॉइंट्स. सो दिस इज ए, बी चला गया, ये सी है. लेट्स से दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज एच. ओके, हाँ, हम लोगों ने ये देखा कि सेम करंट जो है वो यहाँ से और यहाँ से पास हो रहा है. इन तीनों में से अगर जो सेम करंट पास हो रहा है तो ये तीनों किस में कनेक्टेड हो गए? सो ऑल थ्री रेजिस्टर्स दे आर, इफ द सेम करंट इज पासिंग थ्रू देम, दिस एंड दिस, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस आर प्लस आर, दैट विल बिकम इक्वल टू 3R. समझ में आया आपको? तो अब मैं और एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाता हूं. एंड प्लस इन तीनों का कॉम्बिनेशन. नाउ लुक एट दिस. लेट मी मार्क डाउन द पॉइंट्स ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो जाए. दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज डी के नीचे जी, यहाँ पे एच और यहाँ पे बी. ओके, नाउ ये जो तीन रेजिस्टर्स है आर आर आर, इनका टोटल 3R हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है. तो डी और जी के बीच में ये जो एक इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है. लेट मी शो इट दिस वे. दिस इज इक्वल टू 3R. सो बाकी सारे रेजिस्टर्स जो है दोज आर 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 आर. ओके, नाउ यहाँ पे आप देखोगे इन तीनों का कॉम्बिनेशन, तो तीनों का कॉम्बिनेशन स्टार्ट ये पॉइंट से होगा और एंड ये पॉइंट पे होगा. इफ दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी डी. इफ दिस इज जी, दिस विल ऑल्सो बी जी.
So I can say the combination of these resistors is connected between point D and G, connected between point D and G. ठीक है. Now if you look at these two resistors, they are connected across same 2 points D and G, and जब when the resistors are connected across same 2 points, हम लोग क्या कहते हैं, this becomes your parallel combination. So अब ये अगर जो आपका parallel combination है तो इन दोनों का resultant कितना होगा? When two resistors are in parallel, मैंने आपको ये formula दिया हुआ है ना, तो it will be equal to R1 into R2. So R into 3R divided by R1 plus R2, R plus 3R. So this will become 3R by 4. So इन दोनों का रिजल्टेंट अब हो जाएगा 3R by 4. So let me draw. अब इन दोनों को हटा के इनके जगह पे मैं एक ही रेजिस्टर कनेक्ट करता हूं. This will be 3R by 4. Okay. Now let's see. अब इसको और आगे आप कैसे सॉल्व करोगे. मान लो आप यहां से अंदर करंट भेज रहे हो, करंट यहां पे जाएगा, वंस इट रीचेस ओवर हियर ये करंट स्प्लिट हो जाएगा ना, सम करंट विल गो फ्रॉम हियर, सम करंट विल गो फ्रॉम हियर. अब यहां से जो करंट जा रहा है उसके लिए एक ही रास्ता है, पहले तो इस आर रेजिस्टर से जाएगा, फिर ये ग्रीन कलर के रेजिस्टर से जाएगा, एंड फिर ये यहां से वापस बाहर आ जाएगा. क्योंकि अब इसके जगह पे हमने बस एक रिजल्टेंट ग्रीन कलर का जो रेजिस्टर है वो ही हमने कनेक्ट कर दिया है. तो समझ में आ रहा है आपको. तो यहां से जो करंट जा रहा है, दैट सेम करंट इज पासिंग थ्रू दिस, दैट सेम करंट इज पासिंग थ्रू दिस. सो इन तीनों से अगर जो सेम करंट पास हो रहा है तो ये क्या हो गए, दीज थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो इफ दीज थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू R plus 3R by 4 plus R again. Okay. So this is 2R, 4 to 8, 11R by 4. तो अब ये तीन रेजिस्टर्स के जगह पे I'll just connect one single resistance. So let me draw the circuit again. ये as it is रहेगा, ये as it is रहेगा, एंड इन तीनों के जगह पे अब हम लोग बस ये एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे. So that one single resistor would be 11R by 4. Okay. So this is R, this is R, this is R, this is A, this is B. ये C है, ये H है, ये C है, तो ये भी सीधा वायर से ही कनेक्टेड है. So this will be C, this will be H. Now what can you say over here? यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो these two resistors are connected across same 2 points. Because these two are connected across same 2 points, इनका resultant क्या आ जाएगा, it will be equal to R into 11R by 4. ये parallel connection हो गया ना, तो it is R1 R2 divided by R1 plus R2. So R plus 11R by 4. So this becomes equal to 11R by 15. सब इन दोनों के जगह पे मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूं. ओके. सो फाइनली ये आपका जो सर्किट होगा वो अब ऐसा होगा. दिस इज R, A, B, दिस इज R एंड दिस इज 11R by 15. अब तीनों को ऐड कर दो. सो R, अच्छा अब ये तीनों किस में हो गए, आपको वापस अगर जो आप कंफ्यूज हो तो ऑलवेज सेंड अ करंट. अब जैसे ही आप करंट को सेंड करोगे तो करंट ये यहां से ऐसे जाएगा, ये सारा का सारा करंट फिर यहां से जाएगा, एंड ये सारा करंट यहां से जाएगा. तो तीनों से सेम करंट पास हो रहा है ना, सेम करंट पास हो रहा है, तो योर फाइनल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी वुड बी इक्वल टू, सेम करंट है तो ये तीनों किस में हो गए, दे आर इन सीरीज. सो R plus 11R by 15 plus R. So 15 2s are 30 plus 11 41R by 15. This becomes your final answer. ठीक है. सो ऐसे केस में आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हमने यहां से एंड से धीरे 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 सॉल्व कर करके हम लोग यहां तक आए हैं.
तो ऐसे केस में whenever you are confused just pass the current, सेम करंट पास हो रहा है तो सीरीज कनेक्शन हो गया. अगर जो रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स तो वो पैरेलल कनेक्शन हो गया. ठीक है, फाइन. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल लुक एट समथिंग कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये बहुत जगह पे ये यूज किया जाता है. Now normally it is a network of resistors to find unknown resistance, to find unknown resistance. Okay, now it is basically a network of resistors to find the unknown resistance. Now व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है. बेसिकली इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. एक कॉमन फॉर्म इसका ये है, ऐसे 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, 4 resistors are connected, so there are 4 points A, B, C, D. A and C are 2 opposite points, B and D are 2 opposite points. Now किसी भी 2 opposite points के across you can choose this or you can choose this. मैं ये 2 points choose कर रहा हूं, इनके across हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करते हैं. ओके, एंड बचे हुए जो 2 पॉइंट्स है बी एंड डी, इसके अक्रॉस हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं. ओके, ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है, ये दिस मेजर्स द करंट पासिंग थ्रू दिस वायर. यहां से जो भी करंट पास हो रहा है ये मेजर करता है. इट मेजर्स द करंट. measures the current through wire BD. ठीक है, it measures the current through wire BD. Okay, now ये जो 4 रेजिस्टर्स है, let's call them as R1, R2, R3, R4. एक ऑर्डर में हमने इनको नेमिंग किया, R1, R2, R3, R4. Okay, now normally what we use is we use something called as balanced Wheatstone bridge. ये हम लोग प्रूव भी करेंगे. balanced Wheatstone bridge condition. Okay, now when I say balanced Wheatstone bridge condition, इसका मतलब ये होता है कि potential at point B and potential at point D is equal. सी, ए और सी के अक्रॉस तो हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो बचे हुए जो 2 पॉइंट्स है इनका पोटेंशियल इक्वल होता है. सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज वीबी माइनस वीडी. दिस इज इक्वल टू वीबी माइनस वीडी. ये दोनों इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा. अब नॉर्मली करंट फ्लो कहां से कहां पे करता है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो whenever there is a potential difference, उस टाइम पे करंट फ्लो होता है. अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है ना, योर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता. सो देयरफॉर आई कैन से व्हेन आई से बैलेंस्ड Wheatstone bridge, current through galvanometer is 0. ओके, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, जो भी गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा है इसको हम लोग IG कहेंगे, जो यहां से पास हो रहा है. सो IG इज इक्वल टू 0. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे Wheatstone ब्रिज में ही करंट 0 है. पूरे ब्रिज में करंट 0 नहीं है, बस यहां पे जो करंट पास हो रहा है दैट इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ ये कंडीशन, इसी कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस्ड कंडीशन. व्हेन द करंट थ्रू दिस वायर विच इज कनेक्टिंग B to D is 0, इसको कहा जाता है बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज. एंड ये बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज कब होता है, इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस. दिस इज एप्लीकेबल व्हेन R1 upon R2 is equal to R4 upon R3.
this upon this is equal to this upon this. So let me write it over here. R1 upon R4, R1 upon R2 is equal to R4 upon R3. R4 upon R3. This upon this is equal to this upon this. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, this upon this is equal to this upon this. Okay. So if you see the current flow, आपका current flow किस तरह से होगा? ये जो बैटरी है, this will supply current I. ये जो करंट I है वो यहाँ पे जाएगा. जैसे ही करंट I यहाँ पे पहुंचा, करंट डिवाइड हो जाएगा. So some current will flow from here, let's call it as I1. Some current will flow from here, let's call it as I2. या फिर नॉर्मली हम लोग इसको I minus I1 लिखता है, राइट? ओके. नाउ ये जैसे ही करंट यहाँ पे जाएगा, ये जंक्शन पे पहुंचा. नाउ हमें पता है कि when the bridge is balanced, यहां से तो करंट पास हो नहीं रहा है. हम लोग वही कह रहे हैं ना, IG is 0. तो अगर जो यहां से करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब ये सारा का सारा करंट यहां से पास होगा. So this will also be equal to I1. सिमिलरली यहां से जो करंट I2 पास हो रहा है, वो सारा करंट जो है वो यहां से पास होगा, I2. So I can say that the current passing through R1 is same as current passing through R2. Current passing through R4 is same as current passing through R3. But ये सारी चीजें कब applicable है? These things are applicable when IG is 0. And when IG is 0, ऐसे कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन. एंड ये ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है? जब ये रेशियोज इक्वल होता है. R1 अपॉन R2 is equal to R4 upon R3. R1 upon R2 is equal to R4 upon R3. ठीक है? ओके, फाइन. यू हैव टू रिमेंबर दिस नाउ. ये जो कंडीशन है, ये क्योंकि बहुत बार हम लोग यूज करेंगे. अभी मैं आई जस्ट गिव यू द प्रूफ ऑफ दिस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है. यू कैन सी दैट बी और डी के बीच में मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया है. मैं अज्यूम कर रहा हूं द ब्रिज इज बैलेंस्ड. ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, हमें पता है बी से डी कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो इसके बीच में आप कुछ कनेक्ट करो या ना करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. इवन दो आप इसके बीच में मान लो ये इस तरह से कोई और रेजिस्टर भी कनेक्ट करते हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नथिंग विल चेंज. इट्स एज गुड एज कि बी और डी के बीच में, वेन एवर योर ब्रिज इज बैलेंस्ड, बी और डी के बीच में जो भी कनेक्टेड है दैट इज यूजलेस. सो वेदर यू कनेक्ट इट और वेदर यू डोंट कनेक्ट इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट सी. अब हमें ये बैलेंस ब्रिज वाली जो कंडीशन है, हमें क्या प्रूव करना है? व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, you have to prove that R1 upon R2 is equal to R4 upon R3. Okay, now इसका जो proof है that is very very simple. It is not difficult at all. Okay, now we know that potential at B. So पहले तो यहाँ से करंट निकलेगा. Okay, ये करंट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से ये करंट डिवाइड होगा. सो लेट्स से I1 goes from here, I2 goes from here. अब ये जो I1 करंट है, ये सेम करंट I1 हमें पता है यहां से भी फ्लो होगा. एंड ये जो करंट I2 है, ये सेम करंट I2, क्योंकि यहां से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये सारा का सारा करंट जो है I2 वो यहां से फ्लो होगा. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रूफ नाउ. अब ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ समझने की कोशिश करता है. वी नो दैट पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D. सो देयरफॉर अब दोनों साइड से मैं पोटेंशियल एट C माइनस करता हूं. सो VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC. राइट, नाउ VB माइनस VC, B इज हायर पोटेंशियल, C इज लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. So VB minus VC is nothing but potential difference across this. And इस resistor के across potential difference कितना होगा? I1 into R2. Similarly, VD minus VC will be equal to I2 into R3. So ये हो जाएगा I1 upon I2 is equal to R3 upon R2.
ओके, लेट्स कॉल दिस एज माय इक्वेशन 1. अच्छा, अब वापस VB is equal to VD. So therefore I can say VA minus VB. This can also be written as VA minus VD, क्योंकि B और D तो वैसे ही इक्वल है. Now VA minus VB, A should be at higher potential, B should be at lower potential क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है. So VA minus VB is potential difference across this. इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका I1 into R1. So I1 into R1. VA minus VD, it is I2 into R4. Okay, so therefore I'll get this as I1 upon I2 is equal to R4 upon R1. This is my equation 2. Now if you look at these two equations, दोनों का LHS equal है तो दोनों का RHS भी equal होगा. So R4 upon R1 is equal to R3 upon R2. R1 को यहाँ पे देखे जाओ, R3 को यहाँ पे देखे आओ. So you will get R4 upon R3 is equal to R1 upon R2. ठीक है. Now this is what we had to prove, right? अगर जो आप देखोगे R4 upon R3 is equal to R1 upon R2, 4 upon R3 is equal to R1 upon R2. So basically you have to remember this. Whenever this condition is satisfied, जब भी ये condition, whenever this holds true, it means the bridge is balanced, and when the bridge is balanced, यहाँ से कोई current pass नहीं होगा. तो इसके बीच में आप कोई भी अगर जो कंपोनेंट कनेक्ट करोगे तो कोई भी कंपोनेंट यूजलेस होगा. इट वोंट बी ऑफ एनी यूज, क्योंकि वहां से ना कोई करंट पास होगा. ठीक है, ओके. नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत सारे एप्लीकेशंस है. लेट मी गिव यू अ सिंपल एप्लीकेशन. नाउ लेट्स से ऐसा कुछ दिया हुआ है. ठीक है, ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है. लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज X, दिस इज R4. ओके, एंड ये इस तरह से बैटरी कनेक्टेड है, एंड इट इज गिवन टू यू दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड. ओके, ये बैलेंस्ड ब्रिज है. ओके, now it is given to you that this is 10 ohms, this is 10 ohms, this is 10 ohms, and this is 20 ohms. So what should be the value of X? X की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ना हमें ये पता है कि when the bridge is balanced, this upon this should be equal to this upon this. Now when I say this, मतलब यहाँ पे दो रेजिस्टर्स है ना, तो इनका कॉम्बिनेशन जो भी होगा आपको वो कॉम्बिनेशन कंसिडर करना होगा. So how will I solve this? R1 upon R2, this should be equal to R4 divided by the resistance over here, which is basically a parallel combination of these two resistors. So R4 upon RP. So R1 is 10, R2 is 10, R4 is 10, and RP is इन दोनों का resultant RP. Okay. So by solving, you will get Rp is equal to 10 ohms. Now if Rp is 10 ohms, Rp is nothing but R3 into X divided by R3 plus X. R3 is 20 into X divided by 20 plus X. And Rp की वैल्यू आपको पता ही है, this is 10. So इसको solve करो, cross multiply and solve this. So when you solve this, you will get the value of X as 20 ohms. So using balanced bridge condition, हम लोगों ने ये जो unknown resistor है वो unknown resistor find किया है. Okay. Now ये जो Wheatstone bridge है, मैंने आपको starting में ही कहा था, ये Wheatstone bridge, it is used to find out the unknown resistor.
अब अननोन रेजिस्टेंस ये आप कैसे फाइंड आउट करते हो? सो इट इज, आप इसी तरह से नेटवर्क बनाते हो। ये मान लो 4 आर्म्स है, दीज आर द 4 आर्म्स, ओके। ये 1, ओके, R1, R2, X एंड Y। नाउ ये जो 4 रेजिस्टर्स है इनको हम लोग 4 आर्म्स कहते हैं, ARMS, आर्म्स, ओके। नाउ लेट्स से X इज अननोन टू यू, आपको X की वैल्यू नहीं पता, ओके। सो हाउ डू यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X? तो ये जो भी है आप ऐसे R1, R2 यू चूज सच दैट आपको इनकी वैल्यूज पता है, ओके। सो R1 एंड R2 की वैल्यू पता है। यहां पे जो आप रेजिस्टर Y कनेक्ट करते हो, दिस हैज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस आप ऐसे दिखाते हो थ्रू अ एरो, ओके। सो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या कि आप धीरे धीरे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। सो इवन दिस इज नोन टू यू, इसकी वैल्यू भी नोन है, दिस इज नोन टू अस, दिस इज नोन, इसकी वैल्यू पता है, दिस इज अननोन, ओके। ये अननोन है। नाउ व्हाट वी डू इज, हाउ डू यू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर? ये अननोन रेजिस्टर की जो वैल्यू है आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब आप बीच में इसके गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो, ओके। नाउ गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट मेजर करेगा, यहां से जो भी आपका करंट पास हो रहा है, दैट इज IG, okay. Now initially if the bridge is not balanced, if the bridge is not balanced, your IG will not be equal to 0, correct? When bridge is not balanced, तो आप क्या करते हो, आप धीरे धीरे ये जो अननोन रेजिस्टर, ये जो नोन रेजिस्टर है विच इज वेरिएबल, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है, आप धीरे धीरे इसकी वैल्यू चेंज करते जाते हो। आप तब तक चेंज करते जाते हो जब तक ये 0 नहीं होता। सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस ये आपका 0 हो जाएगा, ओके। आप क्योंकि आप जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे ये चेंज होता जाएगा, ये चेंज करो ये चेंज होता जाएगा। इवेंचुअली एक वैल्यू आएगी व्हेन दिस IG बिकम्स इक्वल टू 0। नाउ व्हेन IG बिकम्स इक्वल टू 0 आप सीधा ये कंडीशन यूज कर सकते हो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू X अपॉन Y। बाकी तीनों चीजें पता है तो यू कैन फाइंड आउट X, ठीक है।